Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine and in the best state of your health. Today, the topic we are going to discuss is the chemistry of manganese and iron. Before proceeding towards our lecture today, I will like to share one of my favorite quotes with all of you. Keep going, everything you need will come to you at the perfect time. There is really no need to worry about anything. Everything always arrives in its own perfect timing. Our only job is to let go and let Allah Almighty take over. What's meant to be will happen, and if something is not meant to be, it is for a reason. Dear students, so the next time you are feeling nervous or anxious about anything, just remember everything you need will come to you at the perfect time. In this slide, we are going to discuss chemistry of manganese, potassium permanganate as oxidizing agent, KMnO4 as oxidizing agent in organic chemistry, using KMnO4 as an oxidizing agent in titrations, doing the titration, chemistry of iron, iron as a catalyst in Haber's process, iron ions as a catalyst in the reaction between persulfate and iodide ions, reactions of iron ions in solution, reactions of iron ions with ammonia solution, reaction of iron ions with carbonate ions, testing of iron 3 ions with thiocyanate ion, and at the end, your home assignment. Manganese. Manganese is a transition element having atomic number 25. The electronic configuration of manganese is argon 3d5 4s2. That means that manganese is one of those transition elements which has got the highest number of unpaired electrons. How many unpaired electrons will be there? 5 unpaired electrons, as we know that d orbital has the ability of accommodating 10 electrons. There are 5 electrons, so they will be unpaired. This is the reason that manganese has highest number of oxidation state, which ranges from +2 to +7. Potassium permanganate as oxidizing agent. KMnO4 is a powerful oxidizing agent. Before proceeding further, I will like to clear something. What is oxidizing agent? You people will be familiar with the terms oxidation and reduction before. Keep one thing in your mind, that oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. The key words for memorizing these two things is oil rig. Oil stands for oxidation is loss of electron. Girls, आप ये बात जहन में रखें that the substance which is acting as oxidizing agent oxidizes the other substance. यानी oxidizing agent वो substance होता है जो दूसरे को oxidize करता है और खुद reduce होता है. Reducing agent is a substance which reduces others and oxidizes itself. So KMnO4 is a powerful oxidizing agent. The course of reaction depends upon whether the oxidation is taking place in alkaline, neutral or acidic solution. अब हम ये देखेंगे कि KMnO4 की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्कलाइन मीडियम में कैसे प्रोसीड करेंगी, न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कैसे प्रोसीड करेंगी. सो पहले हम अल्कलाइन सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं.
KMnO4 के अंदर जो मैंगनेट आयन है MnO4-1, इसके अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है. इट इज़ फर्स्ट रिड्यूस टू MnO4-2 आइंस, जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और नेक्स्ट स्टेज में ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्युबल मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है. The equations are like this. आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में KMnO4 अल्कलाइन चूंकि सोल्यूशन है तो दैट मीन्स कि आप बेसिक कंडीशंस लेंगे. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे लिया. KMnO4 पर्पल कलर का, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट विद अ पर्पल कलर, एंड इट इज़ नाउ चेंजिंग इनटू ग्रीन कलर पोटेशियम मैंगनेट. दिस इज परमैंगनेट एंड K2MnO4 इज मैंगनेट प्लस वाटर एंड प्लस अटोमिक ऑक्सीजन. ये जो ऑक्सीजन बिल्कुल अकेली इस तरह से लिखी हुई होती है, इसका मतलब है कि इट इज़ प्रेजेंट इन द नेसेंट फॉर्म इन द अटोमिक फॉर्म, और इसी अटोमिक ऑक्सीजन की वजह से जो KMnO4 है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नेक्स्ट स्टेप में ये जो ग्रीन कलर पोटेशियम मैंगनेट है ये फर्दर किस में चेंज हो जाता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर, विच इज़ ऑफ ब्राउन कलर, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन अटोमिक ऑक्सीजन. यहाँ पर आप कलर चेंज देख लें. जो KMnO4 है वो डार्क पर्पल कलर का होता है. पहले वो चेंज होगा डार्क ग्रीन सोल्यूशन में, MnO4-2, K2MnO4 का कलर ग्रीन है. उसके बाद ये फर्दर चेंज हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर, और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हैं, या ब्राउन या ब्लैक, ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आती हैं, यानी ये दोनों कलर्स मेंशन्ड हैं. अच्छा गर्ल्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि बुक में यहाँ पर कलरलेस लिखा हुआ है, हालांकि ये ब्राउन या ब्लैक ये दो कलर्स आपको मिलते हैं, तो आप ब्राउन/ब्लैक PPT करके इसको ब्राउनिश ब्लैक करके इसको यहाँ पर करेक्शन कर लें. अब अगर आप इसमें देखें तो मैंगनीज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, यानी पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर +7 था, जिससे ये +6 में कन्वर्ट हुआ, और सेकंड स्टेप में ये +6 से +4 में गया, +7 से +6 एंड देन +4. दैट मीन्स दैट द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग. जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को आप रिडक्शन कहते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन. रिड्यूस से याद रखिएगा रिडक्शन, तो इसमें रिडक्शन हो रही थी ये. और यही बात मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताई थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद उसमें क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया. ये तो था कि जब आपका अल्कलाइन सोल्यूशन होगा तो KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी. नाउ वी विल डिस्कस the oxidizing nature of KMnO4 in acidic media. Acidic medium में we are taking dilute sulfuric acid. Permanganate ion is reduced to manganese ion, Mn+2 ion, and 5 oxygen atoms are rendered available from 2 MnO4-1 ions. Equation are written as under. आप यहाँ पर देखें जो इक्वेशन लिखी हुई है 2KMnO4 + H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आपने लिया. इसके जो प्रोडक्ट्स आपने बनाने हैं उसमें आप ये जहन में रखें, आपने पोटेशियम का एक सल्फेट बनाया, दूसरा प्रोडक्ट आपने मैंगनीज का सल्फेट बनाना है, तीसरा आपने वाटर बनाना है, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है फोर्थ वन दैट इज़ द अटोमिक ऑक्सीजन. K2SO4, MnSO4, then water and then atomic oxygen. 2 molecules of KMnO4, they are producing 5 atomic oxygens, 5 oxygen atoms, and these oxygen atoms they are responsible for the oxidizing nature of the KMnO4. अगर मैं इसी इक्वेशन की आयनिक इक्वेशन लिखती हूँ, आयनिक इक्वेशन का मतलब है कि जिसमें चेंज आ रहा है, मैं अगर सिर्फ उसको लिखूँ तो पोटेशियम को यहाँ से हटा दूँ तो दिस इज़ MnO4-1. यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आइंस हैं, 6, 3 2s are 6 H+, जो कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के 3 मोल से आ रहे हैं. K2SO4 मैं यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, मैंगनीज का हो रहा है.
तो Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे +2, एज सल्फेट हैज़ गॉट -2 चार्ज, मैंगनीज विल बी हैविंग +2 चार्ज, देन +3 वाटर एंड देन 5 एटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ से भी मैंने पोटेशियम इरेज कर दिया है, तो यहाँ से भी ये इसका प्रोडक्ट नहीं आएगा। ये मैंने आयनिक इक्वेशन लिखी है, दिस इज द सेम इक्वेशन विच इज रिटन अबव. So it is quite clear from this equation that two permanganate ions, they are producing 5 moles of atomic oxygen. Mn+2 का कलरलेस है, यानी इसके अंदर जब आप एसिडिक मीडिया में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करेंगे तो पर्पल कलर ऑफ KMnO4 विल बी डीकलराइज्ड, विल बी changed into the colorless product. Potassium permanganate is a very useful oxidizing agent in redox titrations. Redox titrations होती हैं जिसको आज हमने स्टडी करना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जाना जाता है। ये इसकी सॉलिड फॉर्म है और ये इसके सोल्यूशन का कलर होता है पर्पल। KMnO4 as oxidizing agent in organic chemistry used in neutral और alkaline solutions। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इसकी एप्लीकेशंस हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्टडी कर रहे हैं। Acidified KMnO4 is a strong oxidizing agent which can break carbon-carbon bonds. The KMnO4 solution is mildly alkaline with sodium carbonate solution. अब इसकी एग्जांपल्स हम कोट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ इन टेस्टिंग फॉर अ डबल बॉन्ड। This is an oxidation reaction. OH group will add across the double bond to form a diol. Solution turns colorless from purple. It is an alternative test for carbon-carbon double bond. These are the equations. Okay girls, यहाँ पर आपने KMnO4 का वाटर के साथ रिएक्शन लिखा है, MnO2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में इथीन का रिएक्शन है एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। यू सी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों कार्बन्स जिनके दरमियान डबल बॉन्ड था उन दोनों कार्बन्स पर आपने OH की एडिशन करनी है। दो काम करने हैं, एक आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है एंड देन यू हैव टू ऐड 2 OH groups on the both carbons like this. This product is a diol. Diol means having 2 OH groups. Now this equation has 3 atomic oxygens, and these atomic oxygens, they are utilized in the second step. They are produced in the first step and they are utilized in the second step. तो आपने इनको इक्वल करना है। यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑक्सीजन्स हैं तो सेकंड स्टेप में भी आपने इसको 3 एटॉमिक ऑक्सीजन करके, क्योंकि ये प्रोड्यूस भी फर्स्ट स्टेप में हुई हैं और कंज्यूम हो रही हैं सेकंड स्टेप पे, तो आपने इसको कैंसल आउट करना है। तो इन ऑर्डर टू कैंसल द एटॉमिक ऑक्सीजन यू विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन with 3, whole equation with 3, and then you will solve these 2 equations. After multiplying this equation with 3 you will add these 2 equations just like algebraic equations. कैसे आप इसको ऐड करेंगे, जो चीज़ें आ रही हैं उनको आप ऐड करेंगे सेम साइड पे, जो ऑपोजिट साइड्स पर आ रही हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सेम ऑपोजिट साइड पर आ रही हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। लाइक 2 KMnO4 एज इट इज़ आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑक्सीजन्स हैं और यहाँ पर भी 3 एटॉमिक ऑक्सीजन्स हैं और ये दोनों ऑपोजिट साइड पर आ रही हैं। लाइक एक जगह पर ये प्रोडक्ट साइड में आ रही हैं और एक जगह पर ये रिएक्टेंट साइड पे आ रही हैं और दोनों का नंबर भी इक्वल है, तो आप इनको कैंसिल कर देंगे। लाइक दे विल गेट कैंसिल। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो आप ऊपर नीचे रख के ऐड कर लेंगे। लाइक 2 KMnO4, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 ethene
और ये 2MnO2 प्लस 2KOH और ये 3 डायोल्स, इसका नाम है इथेन डायोल। 2 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम इथेन है और चूंकि इसके पास 2 OH ग्रुप्स हैं तो इट इज़ नोन एज इथेन डायोल। कॉमन इसका नेम है इथिलीन ग्लाइकोल। अब जो ये रिएक्शन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी भी जगह पर ये चेक करना है कि वेदर अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट और नॉट, टेस्ट करना है, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड। अगर आपके पास इथेन और इथीन है एंड they got mixed in the lab and now you want to confirm that which bottle contains ethane and which bottles contain ethene, तो ethene contains a double bond, तो आप क्या करेंगे, सैंपल लेकर उसके अंदर ये अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे। अल्कलाइन KMnO4 का कलर डार्क पर्पल है जैसे मैंने लिखा। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे तो वो डार्क पर्पल कलर वैनिश हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो सोल्यूशन का कलरलेस हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है दैट योर कंपाउंड हैज़ अ डबल बॉन्ड। तो दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज नोन एज बेयर्स टेस्ट एंड इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ये रिएक्शंस करने के लिए आपने सबसे पहले अपने पास यू मस्ट हैव अ पेन इन योर हैंड, लेक्चर कॉपीज़, और साथ साथ आप इसको लिखें और समझें, कैंसलेशन करें, तब आपको ये क्लियर होंगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है KMnO4, उसकी दूसरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजीन विद KMnO4। हाइड्रोजीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन, मैंगनीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। द रिएक्शन आर एज अंडर। अब इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 वाटर प्लस 5 एटॉमिक ऑक्सीजन। ये वही सेम इक्वेशन है जो हमने स्टार्ट ऑफ द KMnO4 में एसिडिक मीडिया में पढ़ी थी कि 2 मोल्स ऑफ KMnO4 विल प्रोड्यूस 5 एटॉमिक ऑक्सीजन। ये वही सेम इक्वेशन है। इसमें आपने उसी तरह से प्रोडक्ट बनाना है कि एक आपका पोटेशियम का सल्फेट, एक मैंगनीज का सल्फेट, एक वाटर और एक एटॉमिक ऑक्सीजन। इसके बाद आपने हाइड्रोजीन, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजीन का 2 एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और इसके रिजल्ट में हाइड्रोजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन गैस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की दैट विल बी 0 और N2H4 में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -2। सो वी कैन से दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम -2 टू 0। तो इसका मतलब है कि ये इधर ऑक्सीडेशन हो रही है। जब चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है तो ऑक्सीडेशन, और कौन ऑक्सीडेशन करवा रहा है? ऑफ कोर्स KMnO4 ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन्स विच आर यूज्ड इन द सेकेंड स्टेप। अब सेम प्रोसीजर के आपने यहाँ पर एटॉमिक ऑक्सीजन्स को कैंसिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 5 प्रोड्यूस हो रही हैं, सेकेंड स्टेप में 2 एटॉमिक ऑक्सीजन्स प्रोड्यूस हो रही हैं। सो इन ऑर्डर टू कैंसिल देम आप क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों 10 एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएं और फिर जब आप इनको ऊपर नीचे रख कर ऐड करेंगे तो दे विल गेट कैंसल्ड लाइक दिस। अब आप इनका नेट इक्वेशन लिख लें। 2 2 ज़ा 4 KMnO4, 2 3 ज़ा 6 H2SO4, 5 N2H4, K2SO4 के साथ 2 लग जाएगा, 2 K2SO4, 4 MnSO4 और ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, वाटर ऊपर है और नीचे वाले इक्वेशन में 10 वाटर नीचे आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चूंकि ये दोनों चीज़ें सेम साइड पे आ रही हैं तो आप इन दोनों को फाइनली ऐड करके लिखेंगे। 6 वाटर प्लस 10 वाटर मीन्स 16 वाटर एंड देन 5 and 2. This is the net equation. So in this particular example, N2H4 is undergoing oxidation
and acidified KMnO4 is acting as oxidizing agent. Now the third example is that KMnO4 is used as an oxidizing agent in the oxidation of aromatic side chain. Alkaline KMnO4 oxidizes any hydrocarbon side chain attached to a benzene ring back to a single carboxylic acid group. Prolonged heating is necessary. अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो स्ट्रक्चर आपको हेक्सागोनल रिंग लाइक नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज बेंजीन. अंदर जो सर्कल है दैट मीन्स दैट देयर आर ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन and this is methyl. When methyl group is attached to the benzene and this is ethyl group is attached to the benzene. और ये aromatic hydrocarbons वो hydrocarbons होते हैं जो benzene ring जिनके अंदर हो at least one. तो ये साइड चेन है. साइड चेन का मतलब है कि एरोमेटिक ग्रुप के साथ एरोमेटिक के साथ ये साइड चेन लगी हुई है हाइड्रोकार्बन की. यहाँ पर भी सेम स्टोरी है कि ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन रिंग का और इसके साथ जो साइड चेन है दैट इज़ द इथाइल ग्रुप. जब आप अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो फाइनली CH3 हो या चाहे CH2CH3 हो या जितनी भी बड़ी चेन हो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. इसका प्रोडक्ट भी यही आएगा और इसका प्रोडक्ट भी यही आएगा. नीचे वाले केस में आप देख रहे हैं कि देयर आर 2 कार्बन्स इन द साइड चेन बट इन द प्रोडक्ट ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट. तो अगली एक और जो कार्बन है वो किधर जाएगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी. इन द सेम वे अगर मैं कोई और साइड चेन लेती हूँ जिसमें इससे ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं तो वो जो 1 से एक्स्ट्रा कार्बन एटम्स होंगे दे विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएंगे. बेंजीन रिंग के साथ जब COOH ग्रुप लगा हुआ होता है तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइक एसिड. मिथाइल ग्रुप is when methyl group is attached on the benzene ring, this particular compound is known as toluene. So we can say that toluene is converted into benzoic acid by the action of alkaline KMnO4. This is the same reaction. CH3 and KMnO4, alkyl benzene, it is converted into benzoic acid. यहाँ पर आप ये सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर कार्बन है. ये जो कॉर्नर होते हैं ये कार्बन एटम को शो कर रहे होते हैं. ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, तो उसमें हम आपको ये सारा नॉमेनक्लेचर डिटेल से करवाएंगे. अब यहाँ पर आप देखें कि जो नए बॉन्ड बने हैं वो कौन कौन से हैं. आप देखें कि एक कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बना है, ये देखें. एक कार्बन और ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड बना है और तीसरा एक कार्बन और OH के दरमियान बॉन्ड क्रिएट हुआ. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड विच वर नॉट प्रीवियसली प्रेजेंट. पहले जो 3 बॉन्ड्स मौजूद थे कार्बन के वो हाइड्रोजन के साथ थे. तो आप कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के इन बॉन्ड्स में कन्वर्जन हुई है. Using KMnO4 as an oxidizing agent in titration. हमने KMnO4 as an oxidizing agent in organic chemistry पढ़ लिया. अब हमारे पास KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे टाइट्रेशंस में यूज़ होता है, उसको स्टडी करना है. गर्ल्स आपने एसिड बेस टाइट्रेशन तो पहले की हुई है. रिडॉक्स टाइट्रेशन भी हमने फर्स्ट ईयर में की थी. रिडॉक्स टाइट्रेशन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ टाइट्रेशन जिसके अंदर आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट को आपस में रिएक्ट करवाते हैं. और उसको रिडॉक्स टाइट्रेशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और एक रिड्यूस हो रहा होता है. तो KMnO4 उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है उन टाइट्रेशंस में. और ऑफ कोर्स इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होगा. एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स, कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. टाइट्रेशन का पर्पस क्या है? टाइट्रेशन का पर्पस होता है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंस जो भी है आपका. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको KMnO4 की टाइट्रेशंस में कहती हूँ कि आपने KMnO4 स्टैंडर्ड सोल्यूशन है. स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता हो
और दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट जिसके साथ आप इसका रिएक्शन करवाएंगे या जिसके साथ आप इसकी टाइट्रेशन करवाएंगे, उन तमाम रिड्यूसिंग एजेंट्स की आप कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टाइट्रेशन विद द KMnO4। अगर आपको KMnO4 और वो जो रिड्यूसिंग एजेंट जो सेकंड है जिसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए, दूसरे की आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने इसमें जहन में रखनी है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एसिडिफाइड फॉर्म में KMnO4 की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इन्हेंस हो जाती है, तो हम हमेशा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट ऐड करते हैं इन टाइट्रेशंस में जिनमें KMnO4 इन्वॉल्व है। Permanganate titration endpoint. A redox titration using potassium permanganate as the titrant. Titrant is a substance which is present in the burette. Because of its bright purple color, KMnO4 serve as its own indicator. सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे ये यूज़ होता है, इसके अंदर आपको कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं डालना पड़ता। ऑलवेज यू ऐड KMnO4 इन द ब्यूरेट लाइक दिस, और ये कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसके साथ आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। और फाइनली जो आपका एंड पॉइंट है या जो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन या टाइट्रेशन कब कंप्लीट हो चुकी है, वो इस फेंट पिंक कलर जो इसमें अपीयर होगा उससे पता चलेगा। ये पहले कलरलेस है, और जब आपका एक एक्स्ट्रा KMnO4 का ड्रॉप इसके अंदर डलेगा जो अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो दैट विल ultimately result in the production of this faintly pink solution, and that will be the end point of this particular titration. Now I am quoting examples of these titrations. First is the oxidation of ferrous to ferric ions. In this case, the use of KMnO4 as a titrant, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि titrant वो substance होता है जो आप ब्यूरेट में ऐड करते हैं, बिकॉज इट कैन एक्ट एज इट्स ओन इंडिकेटर। और आपको मैंने बताया कि इसका कलर ब्राइट पर्पल होता है। जो नीचे आप ऑफ कोर्स फेरस आयंस ले रहे हैं क्योंकि आपने उनकी ऑक्सीडेशन करवानी है, फेरस सल्फेट ले रहे हैं, वो कलरलेस होगा। और फिर जब एंड पॉइंट आएगा तो आपका जो भी एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऊपर से अनरिएक्टेड KMnO4 का डलेगा, दैट विल यील्ड लाइट पिंक कलर, और उसके रिजल्ट में ये एंड पॉइंट आ जाएगा कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब जो इसके रिएक्शंस हैं उसमें सबसे पहला रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4 का कि K2SO4, वही आपने प्रोडक्ट बनाना है MnSO4, वाटर और एटॉमिक ऑक्सीजेंस। 2 potassium permanganate, they are producing 5 moles of atomic oxygens. सेकेंड स्टेप में फेरस सल्फेट, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट का एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, और एज अ रिजल्ट दिस फेरस विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट, यानी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी। और कौन ऑक्सीडेशन करवा रहा है? ऑफ कोर्स KMnO4. Fe+2 is converted into Fe+3. Increase in charge is happening over here. So we can say that the oxidation of iron is taking place over here. अब आपने similar procedure पे, as you know that there are 5 atomic oxygen produced in the first step. So in order to equalize the number of oxygen atoms, you will multiply the equation number 2 with 5. And then you will write the final equation, 2 KMnO4 plus ऊपर 3 H2SO4 है, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय H2SO4, इनको आप ऐड करेंगे तो दे विल बी 8 H2SO4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 FeSO4, 10 FeSO4. ये जो आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन्स हैं दे विल बी इक्वल एंड दे विल कैंसल आउट. 5 Fe2SO4 होल थ्राइस, K2SO4, 2 MnSO4, sorry, there is a mistake over here, right, 2, and then 8 waters. 5 वाटर नीचे और 3 ये ऊपर, इन दोनों को चूंकि ये सेम साइड पे आ रहे हैं आप ऐड करके इस साइड पे लिख लेंगे. Ethane dioic acid, oxalic acid to carbon dioxide. Potassium permanganate is standardized against pure oxalic acid. It involves a redox reaction. Oxalic acid is oxidized to carbon dioxide by KMnO4, which itself get reduced to MnSO4. इसकी इक्वेशंस सेम इसी तरीके से आपने एसिडिफाइड
पोटेशियम पर मैंगनेट की इक्वेशन लिखी, जो प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे वो K2SO4 MnSO4, एक प्रोडक्ट वाटर बनेगा और 5 एटॉमिक ऑक्सीजन्स। ये वाली जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं कि तमाम टाइट्रेशंस की जो एग्जांपल्स हैं उनमें फर्स्ट इक्वेशन कॉमन है और ये आपने बैलेंसिंग के साथ लिखनी है ताकि आपकी अगली इक्वेशंस बिल्कुल ठीक हो। ये है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन्स, 2 carbon dioxide and 2 moles of water are produced. ऑक्सैलिक एसिड के अंदर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ +3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर +4 है। तो +3 से +4 चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड KMnO4 इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपने इसकी भी नेट इक्वेशन लिखनी है। इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यू विल मल्टीप्लाई बाय द इक्वेशन नंबर 2 विद 5। ये कैंसिल हो जाएंगे और आप 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स 18 water molecules, 3 water molecules here and 10 over here, so there will be 13 water molecules and then 10 carbon dioxide. Third example of the use of KMnO4 in titration is sulfitines to sulfatines. The equation are as under. First equation is the same, acidified KMnO4 वाली 2KMnO4 plus 3H2SO4 K2SO4 MnSO4 plus water plus 5 atomic oxygen. सेकेंड स्टेप में ये सल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट SO3, एक एटॉमिक ऑक्सीजन इसमें आप ऐड करेंगे एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इट मीन्स के सल्फाइट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हेयर and acidified KMnO4 is acting as an oxidizing agent. In order to equalize the number of oxygen atoms, you will multiply the second equation by 5. फिर आप इसकी नेट इक्वेशन लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5Na2SO3 K2SO4 2MnSO4 3 water molecules and then 5Na2SO4. This is the ionic equation which is written over here, जिसमें आप यहाँ से पोटेशियम कैंसिल कर देंगे, पोटेशियम हटा देंगे तो MnO4 -1 रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 5SO3 -2 रह जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 6H प्लस और 2Mn प्लस 2 प्लस 5SO4 -2 और 3 वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन मैंगनीज और सल्फ़र में चेंज आ रहा है और एसिडिक मीडिया में ये रिएक्शन होता है, इसलिए आप हाइड्रोजन +1 लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में, आनिक इक्वेशन में हमने सिर्फ वो स्पीशीज़ मेंशन की हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। H प्लस सिर्फ इसलिए ऐड किया है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ तभी हो सकती हैं जब आप एसिड की प्रेजेंस में करें। This is the last example of the use of oxidizing agent in titration. Potassium ferrocyanide to potassium ferricyanide. The equation are as under. First equation is the same, the acidified KMnO4, 2 moles of KMnO4, they are producing 5 moles of atomic oxygen. In the second step, this is potassium ferrocyanide, K4FeCN whole 6, and this +2 is the charge प्रेजेंट ऑन द आयरन। एक एटॉमिक ऑक्सीजन इसमें आप ऐड करेंगे प्लस वाटर और 2K3FeCN होल 6, और ये जो +3 है ऑफ कोर्स ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है ताकि आपको पता चले कि आयरन जो है वो +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है। सो पोटेशियम फेरोसाइनाइड विल बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड KMnO4 विल बी एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So same procedure, in order to equalize the number of oxygen atoms you will multiply the equation number 2 with 5। चूँकि ये दोनों सेम नंबर्स के हैं और ऑपोजिट साइड पे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इक्वेशन आप एज इट इज़ उतारेंगे 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10K4FeCN होल 6 प्लस 2 वाटर। अब ये 2 वाटर कैसे आए, यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अब ये दोनों अगर सेम साइड पर होते तो हम इन्हें ऐड कर लेते, लेकिन चूंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं और इक्वल नंबर भी नहीं है इनका, तो आप इनको कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने किस साइड पर लिखने हैं, इस साइड पर या इस साइड पर, जहाँ पर भी आपके पास ग्रेटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं आपने उस साइड पर इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका नेट लिखना है। लाइक 5 minus 3 is 2. You have to write 2 water molecules on this side, on reactant side, because there are greater number of water molecules on this side. So K2SO4, 2MnSO4, 10K3FeCN whole 6 plus 10 KOH. तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। बुक में यहाँ पर भी मिस्टेक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स उन्होंने प्रोडक्ट साइड पर लिखा है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। Doing the titration, the potassium permanganate solution always goes into the burette, और जो अदर सोल्यूशन होगा, जैसे मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स या 4 केसेस बताए हैं, वो आपने जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करके आपने यहाँ पर डालना है कोनिकल फ्लास्क में। लाइक अगर हम फेरस सल्फेट के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं तो फेरस सल्फेट के अंदर आपने हाफ टेस्ट ट्यूब H2SO4 की ऐड करके then you will titrate with the KMnO4 solution। आप इसके ड्रॉप वाइज खोल देंगे until and unless जब आपका ये पिंक कलर अंदर जाएगा वैनिश हो जाएगा, जब आपका पिंक ड्रॉप जाएगा वैनिश हो जाएगा, क्योंकि वो KMnO4 रिएक्ट करता जा रहा है। जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप KMnO4 का वो एंड पॉइंट दे देगा, पेल परमानेंट पिंक कलर जो गायब नहीं होगा, यानी ये परसिस्ट करेगा। तो दैट मीन्स कि आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। आप फिर इसकी फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप वॉल्यूम इनिशियल नोट कर लेंगे। जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड पॉइंट आने के बाद आप फाइनल वॉल्यूम नोट कर लेंगे और फिर अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। द एंड पॉइंट इज द फर्स्ट फेंट ट्रेस ऑफ परमानेंट पिंक कलर। Now, chemistry of iron. The oxidation states of iron are +2 and +3. Fe +2 is ferrous and Fe +3 is ferric. In aqueous solution, the iron is readily oxidized from ferrous to ferric. यानी oxidation इसकी बहुत rapid होती है aqueous solution में। ferrous ions they get converted into ferric ions. अगर आप इसमें देखें तो oxidation हो रही है, that indicates that ferrous ion will behave as a reducing agent. कंसनट्रेशन ऑफ फेरिक आइंस जो है वो अगर आपने मालूम करनी है तो आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टाइट्रेशन करवा के इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। आयरन एज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस। अब हेबर्स प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल। अमोनिया की बहुत यूटिलाइजेशन है हमारी डेली लाइफ में। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमोनिया यूज़ करती हैं, और हेबर्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अमोनिया को लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए जो दो आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में आप मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, और एज अ रिजल्ट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे आर प्रोड्यूस्ड। नाइट्रोजन का सोर्स है एयर से आप नाइट्रोजन लेते हैं, बिकॉज यू नो दैट एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन का सोर्स जो है वो नेचुरल गैस है मीथेन, जिससे आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, और इन दोनों को आप रिएक्ट करेंगे आयरन के प्रेजेंस में तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा। दिस रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। Nitrogen from the air, it is combining with the hydrogen from the natural gas, और 1:3 by volume में आप इसे मिक्स करेंगे, ये conditions आप देंगे, तो as a result it will be converted into ammonia. Iron ion as a catalyst in the reaction between persulfate and iodide. अब ये दूसरी एग्जाम्पल है जहाँ पर आयरन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। फर्स्ट मैंने अभी कोट किया आपके साथ कि हेबर्स प्रोसेस है, और सेकंड क्या है, पर सल्फेट आइंस का और आयोडाइड आइंस का रिएक्शन है जिसको आप कैटलाइज कर सकते हैं। ये रिएक्शन है ओवरऑल, ये पर सल्फेट है S2O8-2, आयोडाइड आयन के साथ आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं 2SO4-2 और आयोडीन। I-1 इज कन्वर्टेड इनटू I0, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है,
तो आप कह सकते हैं कि इसका चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर रिडक्शन हो रही है सल्फ़र के अंदर, सल्फ़र का चार्ज जो है वो कम हो रहा है। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने के लिए आप आयरन 2 आयंस भी यूज़ कर सकते हैं और आयरन 3 आयंस यानी फेरस और फेरिक बोथ कैन बी यूज्ड। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैटलिस्ट किस तरीके से एक्ट करेगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो दैट विल बी लाइक दिस। रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज द S2O8-2 प्लस फेरस आयंस, ये आप एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। कैटलिस्ट का आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, और वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है। तो आपके पास क्या होगा, फेरस आयंस S2O8-2 को SO4-2 में कन्वर्ट कर देगा और ख़ुद फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये फेरिक आयंस आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे और ख़ुद ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखें ये फेरस आयन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन के एंड पे रीजनरेट हो गया, यानी पहले स्टेप में यूज़ हुआ और आखिरी स्टेप में रीजनरेट हो गया। अब आपने अगर ऊपर नीचे रख के इन दोनों इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फेरिक आयंस जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑन द ऑपोजिट साइड, और ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये तो तब मैकेनिज्म था जब आपका फेरस आयन वाज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अगर आपके पास आयरन 3 आयन कैटलिस्ट के तौर पे इस रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हों तो यही मैकेनिज्म रिवर्स हो जाएगा, मींस कि फर्स्ट स्टेप जो आपका सेकंड स्टेप था वो बन जाएगा और ये वाला सेकंड स्टेप बन जाएगा। यानी इफ़ आयरन 3 आयंस आर प्रेजेंट देन दे विल फर्स्ट रिएक्ट विद आयोडाइड आयन और ये बनेगा, और सेकंड स्टेप में फेरस आयंस जो हैं वो S2O8 को कन्वर्ट करेंगे SO4-2 में। तो दिस इज़ another example in which iron is acting as a catalyst. Reaction of iron ions in solution. अब मैं आपको reaction of iron ions with hydroxide ions जो है वो करके दूंगी। फर्स्ट केस में हम Fe+2 के साथ रिएक्शन स्टडी करेंगे और फिर Fe+3 के साथ। अब आपने क्या करना है कि जो फेरस आयंस हैं वो एक्वा सोल्यूशन में इस तरह से हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हेक्सा एक्वा यानी 6 वाटर मॉलिक्यूल साथ जुड़े होते हैं, आयरन 2 आयन। इसके साथ आपने हाइड्रोक्साइड आयंस का रिएक्शन करवाना है। 2 हाइड्रोक्साइड आयंस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस ये क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो इन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। और मैं 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ही रिएक्शन क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर +2 चार्ज है, तो अगर मैंने इसको न्यूट्रल करना है तो आई नीड +2OH-1। अब जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको देखिए, Fe यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 6 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गई है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए, रिमेनिंग H2O होल 4। और उसके बाद जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन निकल गई तो पीछे वो OH बन गए, तो OH होल ट्वाइस। वो जो 2 हाइड्रोजन्स वहाँ से निकल के आई हैं वो इन 2OH-1 के साथ मिलके 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर देंगे। हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयंस में से ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 2 हाइड्रोक्साइड आयंस अपनी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर बना लेंगे और 4 यहाँ पर रह गए, और जो बाकी 2 में से जिनमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुई है वो 2OH इस तरह से। तो ये इक्वेशन भी दिखने में आपको लग रही है कि इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो इट्स वेरी ईजी। Iron is very easily oxidized under alkaline conditions. Oxygen in the air oxidizes the iron 2 hydroxide precipitate to iron 3 hydroxide. अब यहाँ पर इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि ये हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयंस हैं, आपने इसी तरह से NaOH इसमें डाला, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आया है ये उसका कलर है। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो आपको पता है कि आयरन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, तो ये ऊपर वाली लेयर जो है डार्क ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। सो ये जो लेयर है ये आयरन 3 हाइड्रोक्साइड की है। अब वही रिएक्शन जो हाइड्रोक्साइड के साथ है वो मैं आयरन +3 के साथ आपको करके दिखाऊंगी। हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयंस, इसके साथ आप 3 हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर कितने वाटर रह जाएंगे, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोक्साइड 3 वाटर में से H निकाल लेंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा उनका OH होल थ्राइस,
+3 वाटर और चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. दिस इज द pictorial representation of this particular change. So it is converted into brown color substance, orange brown. Reaction of iron ions with ammonia solution. अब सेम प्रोसीजर पे हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है. अमोनिया भी एज अ बेस भी एक्ट करता है, एज अ लिगेंड भी एक्ट करता है. बेस के तौर पे ये ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे अभी हमने हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाए हैं. जैसे हाइड्रोक्साइड ने वाटर में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट की है, सेम इसी तरीके से अमोनिया भी एज अ बेस एक्ट करेगी और वाटर में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी. लाइक इन द केस ऑफ आयरन 2 आयंस क्या होगा, ये 2 अमोनिया के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं. सेम प्रोसीजर आप याद रखेंगे, चूंकि ये +2 है तो यहाँ पर 2 अमोनिया. 2 अमोनिया ने क्या करना है, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से, आउट ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगी. सेम वही प्रोसीजर है. तो ये क्या बन जाएगा, 2NH4+1 और पीछे क्या बनेगा, FeH2O. पीछे कितने वाटर रह गए, 4, और जितने वाटर में से उसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट की है, ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, तो 2 वाटर में से निकाली है तो 2OH यहाँ पर रह जाएगा. तो दिस इज़ अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विच इज़ फॉर्म्ड. और इसका भी सेम है बिल्कुल हाइड्रोक्साइड की तरह, के ऊपर वाली लेयर डार्क हो जाएगी क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने की इसके अंदर टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. अब आयरन 3 आयंस के साथ भी रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर नेचर का है कि आपने यहाँ पर हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयंस के साथ 3 मोल्स ऑफ अमोनिया का रिएक्शन करवाना है. और ये 3 मोल्स ऑफ अमोनिया क्या करेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 3 के अंदर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके 3 अमोनिया माइंस बना लेंगे. वाटर मॉलिक्यूल्स जो रिमेनिंग है वो 3 रह जाएंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जिनमें से हाइड्रोजन निकल गई वो OH होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये सेम उसी प्रोसीजर पे रिएक्शन है और ये उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि ये भी ऑरेंज कलर के इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया. अब रिएक्शन ऑफ आयरन आयंस विद द कार्बोनेट आयंस. तो अब ये जो रिएक्शन है कार्बोनेट आयंस के साथ, ये आयरन 2 और आयरन 3 के साथ थोड़ा डिफरेंट नेचर के. आयरन 2 के साथ तो सिंपल है, फेरस आयंस और कार्बोनेट आयंस दे विल कंबाइन टुगेदर इन फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ iron 2 carbonate and this is the color change. आयरन 3 के साथ इसका रिएक्शन जो है कार्बोनेट आयन का, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा. बेसिक कंडीशंस की तरह का रिएक्शन होगा जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के साथ पढ़ा है, बिल्कुल वैसे. क्योंकि हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयंस एसिडिक नेचर के हैं तो यहाँ पर ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसकी डोमिनेट कर जाएंगी और एज अ रिज़ल्ट ये रिएक्शन होगा. आपने +3 आयन है तो 3 कार्बोनेट आयंस लेने हैं जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 3 रह जाएंगे और 3 को OH में कन्वर्ट कर देगा. कार्बोनेट आयंस विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर. यानी आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये रिएक्शन जो डिफरेंट है बाकियों से, अमोनिया वाले रिएक्शन से और हाइड्रोक्साइड वाले रिएक्शन से, वो इस वजह से क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही. दिस इज़ द कलर चेंज. Bubbles of carbon dioxide they can be seen in this particular picture. अगर आपने आयरन को टेस्ट करना है, आयरन 3 को टेस्ट करना है, तो एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं, लैब में भी यूज़ करते हैं इंशाल्लाह ताला, जब कॉलेज रिज्यूम होगा तो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में भी हम ये करेंगे टेस्ट, जिसमें आपने अगर आयरन 3 आयंस को आयरन 2 आयंस से डिस्टिंग्विश करना है कि बताएं कि ये फेरिक है या फेरस है, तो आप थायोसाइनेट ऐड कर दें, चाहे सोडियम थायोसाइनेट, चाहे पोटेशियम, चाहे अमोनियम थायोसाइनेट. SCN इज़ थायोसाइनेट. तो आप जब डालेंगे तो ब्लड रेड कलर, इंटेंस ब्लड रेड कलर जो है वो आपका आता है, विच विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयंस इन द सोल्यूशन. और ये कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से इंटेंस ब्लड रेड कलर आता है. द इक्वेशन इज एज अंडर. ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं SCN. तो इसके अंदर क्या होगा कि ये लिगेंड एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कहने का मकसद है कि एक वाटर निकल जाएगा और 5 वाटर रह जाएंगे और एक वाटर की जगह पर आप SCN को अंदर शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पर ये लिगेंड के तौर पे अंदर जाएगा और प्लस वाटर. तो दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स विच इज़ फॉर्म्ड इज़ हैविंग एन इंटेंस ब्लड रेड कलर
तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्लड कलरेशन एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आप आयरन की +3 फॉर्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं +2 से. That's all for today's lecture. I hope all of the things will be clear. Now it's time for your home assignment. Write reaction equations between persulfatine and iodidine. ये वही आपने जिसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था, आपने उसी का मैकेनिज्म लिखना है. Question number 2, how thiocyanate ion is used for the testing of iron. Question number 3, how toluene is converted into benzoic acid, and how acidified potassium permanganate reacts with oxalic acid. Thank you. That's all for today. Stay home, stay safe.